शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या देवे सदा देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवद्गीताजाड्यापहा यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृत्वा विधीयताम्। हरे कृष्ण। भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां हार्दं स्वागतम्। Please keep yourself mute. Once I ask, then you will unmute yourself. So today we will start the Samskrita Varnamala. In our previous class, I will recapitulate. In our previous class, we spoke about Bhasha, Bhashayati, Bhavayati iti Bhasha. Anantaram Vyakaranam, Samskrita Bhasha. Prakriti Pratyayau Sanyojya Krita Rachita Bhasha Samskrita Bhasha iti vayam janimahe. तदनंतरम व्याकरणम किम व्याक्रियन्ते उत्पद्यन्ते। हाँ बोलिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते उत्पद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पद्यन्ते शब्दः येन तत् शास्त्रं व्याकरणम्। I'll repeat it. व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन तच्छास्त्रं व्याकरणम्। अतः वयम् इदानीं जानीमः यद् भाषा एतदर्थे यदि कोऽपि पृच्छति भाषा किं, व्हाट इज लैंग्वेज, तर्हि उत्तरं किं भविष्यति? भाषयति भावयति इति भाषा। संस्कृत भाषा किं, व्हाट इज संस्कृत लैंग्वेज दैट यू आर स्टडीइंग? प्रकृति प्रत्ययो संयोजात कृता रचयति भाषा संस्कृत भाषा। देयर आर सम मिस्टेक्स। प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य कृता, संयोज्य कृता, where prakriti and pratyaya are combined together. Okay, that language is Sanskrit language, because apart from Sanskrit language there is no other language where prakriti and pratyaya concept exists. So prakriti pratyayo sanyojya krita rachita bhasha Sanskrita bhasha. Number 3, vyakaranam kim, Sanskrita vyakaranam. What is the grammar? व्याक्रियन्ते उत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः येन तत् शास्त्रं व्याकरणम्। तत् शास्त्रम, तत् नहीं, तत्। तत् दूसरे वाले त में हलंत है नीचे, तत्। ठीक है, अगर हलंत नहीं होती तो हम तता बोलते, वो हम आगे सीखेंगे हलंत विसर्ग अनुस्वार क्या है। आज मैं संस्कृत वर्णमाला प्रारंभ करने जा रहा हूं। ध्यान से हर कोई पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है? देखिए, भाषा, वर्ण इज इक्वल टू अक्षरम। वर्ण का अर्थ होता है अक्षरम। See the conjoint letters, try to pronounce it by yourself, and if required, whatever is new for you, write it down. Aksharam. Varnah.
below at the bottom, it's written Varanaha, that is singular, one letter. When it is written Varanaha, that means plural. Varanaha, many letters, conjoined all together. That turns into Shabdaha. Shabdaha means word. Shabdaha is also plural. Shabdaha, singular, Shabdaha, plural. When some words are connected all together meaningfully, that is known as Vakyani. That is also plural. Vakyani. And when you express some thought through few sentences, that is known as Bhasha. Clear? Now we will go into the technicalities of Sanskrit alphabet. Varnanam samuha is equal to Varnamala. Samuha means group. A group of letters known as Varnamala. It's a feminine gender, Varnamala. Where, what kind of varnas are there? Varnaha dvidha vibhajyate. Varnas are again divided into two parts. Swaraha vyanjanani. Varnanam samuha Varnamala. Varnaha dvidha Swaraha vyanjanani. Now the question comes, which are swaras and which are vyanjanas? Swaraha. 13, Prabhuji. You're writing? You have the PDF. You can see it from there also. Now let's come to swaras. Okay. Swaraha trayodashaha. How many? Trayodashaha, 13. You have to learn the Sanskrit terminologies also. Swaraha trayodashaha. And the entire science of Chanda Shastra lies here. The Swara Varnas are more important than the Vyanjana Varnas when it comes to pronunciation. If you're able to pronounce the Swara Varnas properly, then there is no pronunciation mistake. So don't think it's just a primary level thing. If you understand this science properly, you can understand the Chanda Shastra. There won't be any mistake in your pronunciation. A, E, U, Ru, Lru, A, I, O, Au. Chintamani Mataji, read it. A, E, U, Ri, Ru, Ra, Lri. Lu, Ri, A, O. So you will go through the recording again, okay? After the class, you will go through the recording. I'm pronouncing it, because this pronunciation has to be immaculately perfect. See, the first one is called Hraswa, means short. The second one is long, Dirgha. E is Hraswa,
E is dirgha. That's why it's written in a different way. E. So you cannot say E. You cannot say E. E. Say U. U. The rikar ru. 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 Ru is short always. And last four again. The last four are always long. A, I, O, O. In all other languages, this clarification is not there, but in Sanskrit, it's very important. So don't repeat this mistake again. You can mark it, which is Hraswa, which is Dirgha, you can mark it. So A is Hraswa, A is Dirgha. E is Hraswa, E is Dirgha. U is Hraswa, U is Dirgha. Ri is Hraswa, Ri is Dirgha. Lri is Hraswa. And the last four are always Dirgha. A, I, O, Au. This you have to keep in mind. Okay. So Jiva Goswami gives a sutra. He says Ekamatra Bhaved Hraswa. Ekamatra means 1 meter. Meter in Chanda Shastra meters, you know. So where you take 1 second to pronounce A, E, U, Ru, Lru. These are Hraswa. There are only 5 Hraswa letters out of 13. And the rest 8 are all Dirgha. Okay. So now please everyone keep mute yourself. So Ekamatra Bhaved Hraswa. Dvimatro Dirgha Uchyate. When it takes 1 matra time, 1 second, then that is known as Hraswa. This is the definition. And Dvimatra Dirgha Uchyate. When it takes double of that amount is called Dirgha. For example, A, I, U, U. Clear? That you have to carry forward always. So Ekamatra Bhaved Hraswa. Only 5 are Hraswa, rest all are Dirgha. The last 4 are all Dirgha. Now, A and A, E and E, U and U, Ri and Ri, these are called Savarna. Savarna means we called, in India, we call the Brahmanas Savarna. Like if a Kshatriya marries a Kshatriya, it's called Savarna marriage. That means they're marrying within their own caste. So A and A, Jiva Goswami says they are Ekatma. They have a single soul. So you can think like a twin. A and A are twin. But what is the difference? Even amongst the twins also there are differences. What is the difference? A is Dirgha. A is Hraswa. E is Dirgha. Ishwaraha, we say. That is Dirgha. Or Kavi, short E. Kavi and Ishwaraha, both are not same, but both are E. U and U. Sadhu, Bhumi. Sadhu, Bhumi. You have to say Bhu, long.
Ri and Ri. Ri is always Hraswa. So Jiva Goswami says they are Ekatmaka. Ekatma, they have one soul. So Hraswa and Dirgha is very clear. Now Jiva Goswami says in his next sutra, Ekamatro bhaved Hraswa. When some letter is Ekamatra, then that is called Hraswa. Matra means, as I said, 1 meter. It's a measurement of time. Ekamatra means 1 second. Ekamatra bhavet Hraswa, Dvimatro dirgha uchyate. If it takes 2 matras, then that is known as dirgha. Trimatrastu pluto gya. More than that is known as trimatra. For example, in Vedas it's being used a lot. And in Laukika Vyakarana, in Sambodhan we use it. Like, Hey Krishna. This is trimatra. It's more than 2 seconds. जैसे हम बोलते हैं हरे हरे कृष्णा, तो ये जो हरे है ये संबोधन है, हम आरती से बुला रहे हैं भगवान को, ठीक है ना? With desperate hankering we are calling the Lord. So that is called Pluta. Pluta means, you will see later, there is 3, number 3 is written. So that means more than 2 meters is called Pluta. Bhakti Devi in Bhagavatam, Bhakti Devi is calling Narada Rishi. When Bhakti Devi, her son Jnana and Vairagya become old, and she was very much desperate, she was very much frustrated. Then she saw Narada Rishi. She called, Bho Bho Sadhu Kshanam Tishtha Machintam api nashaya. तो भो भो ये जो है ये त्रिमात्रा. तो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हरिनामामृत व्याकरण में एकमात्रा भविद ह्रस्वो द्विमात्र दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो. और इसको समझा रहे हैं कैसे? न आदि त्रयस्य कुक्कुट ऋतो इति क्रमेण प्रसिद्धि. तो ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, इसको ये कुक्कुट, कुक्कुट यानी मुर्गी, चिकन, इसके साथ ये उदाहरण दे रहे हैं. जैसे मुर्गी सुबह उठ के कुकड़ुक कू करती है, तो ये जो कुक, ये है एक मात्रा, कुकड़ो द्विमात्रा, कू त्रिमात्रा, प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसको समझाया. ठीक है, आदि त्रयश कुक्कुट ऋतो इति क्रमेण प्रसिद्धि. चलिए, तो इसको हम समझ गए. इसका उच्चारण अवश्य ही आप लोग घर में अच्छी तरह से कीजिएगा with the help of the recording. Anybody would like to read it? Love Kushji, unmute and read. Unmute yourself. A, A, E, U. It should be taking double time. U, Ru. U. U. Ru. Lu. वो एक ही है. हाँ. A, I. नहीं. O. A, I. It's all dirgha, I said. A, I. A, I are not the same. They're all separate. They're not ekatmaka. A, A. No. Don't connect them. A, I, A. O. These 4, especially I said many times, that don't misunderstand that A and I are the same. No, they're not same. They're all totally different. They have no connection. And they are all 4 dirghas.
That's why I'm saying that one time, if you don't understand, you repeat this recording and listen to it at home so that there is no further mistake. If this is not rectified, the whole life you will mispronounce Sanskrit. I'm telling you. Okay, Baba. So Okay. this is very important. Chali, Ramapriya, read it. E. Please close the other E. device. Keep only one device at a time, otherwise it will echo. E. E. U. U. Re. 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 A. O. O. I drag it. Okay. A. O. O. In the beginning, in the Veda, there is a sutra, Gatir Mando Dviko Dhvanihi. Gatir Manda, slow in speed and high in chanting, louder, the maximum louder. So very slow and loud. This is the style of reading. Okay. Otherwise, I will not repeat these chapters again and again. I am teaching one time and then you have to practice at home. Otherwise, you will continuously keep on mispronunciation. Okay. So when you are studying Sanskrit language, it should be perfect in terms of pronunciation. That's why I'm giving more time, but one time I will give. Later on, I will say this is Dirgha, this is Hraswa, that's it. So I'm reading again, listen. There is no rush. We are not going to catch any train. Huh? E, U, Ru, Ru, Lu, A, I, O, Au. ठीक है, देखिए एक श्लोक मैं दिखाता हूं आपको. देखिए यहाँ पे माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थंच षडेते पाठका गुणाः. ये 6 गुण होने चाहिए पाठक के अंदर. पाठक यानी हु स्पीक, द स्पीकर. माधुर्यम, वाणी में मधुरता हो. अक्षर व्यक्ति, हर एक अक्षर की स्पष्ट उच्चारण हो. पदच्छेदस्तु, पदच्छेद कर सकें. ठीक है. सुस्वरः, और मधुर कंठ होना चाहिए. अब देखिए क्वालिटी क्या है. धैर्यम, he should have patience. लय समर्थम, लय यानी छंद. ठीक है. लय में समर्थ हो, he should be capable in producing the laya. धैर्यम लय समर्थंच षडेते पाठका गुणाः. The 6 are the qualities of a reader. तो यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को. देखिए मैं ह्रस्व
ह्रस्व दीर्घ कैसे पढ़ रहा हूं। जहां पे आ ई आएगा वहां पे मैं दीर्घ करूंगा, जहां पे आ ई उ है वहां पे मैं ह्रस्व पढ़ूंगा और अपने आप ये छंद में आ जाएगा। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः। मा is long, madhuryam, ma will be long again. Madhuryamaksara vyaktihi padachhedastu suswaraha dhairyam laya samartham cha षडेते पाठका गुणाः। षडेते डे ते पा का ण ये दीर्घ है। धैर्यम लय समर्थम च, दिस आर ऑल शॉर्ट। षडेते पाठका गुणाः, ये आपको आना चाहिए, तभी आप जो है छंद शास्त्र आराम से पढ़ेंगे। अब आपने माधुर्यमाक्षर व्यक्ति ऐसे करेंगे तो छंद नहीं होगा वो। तो मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को ये श्लोक निकाला कि इसका प्रयोग कहाँ होती है। हर जगह इसका प्रयोग है, जो मैंने अभी आपको आ सिखाया। और उसी को समझने के बाद ही आप संधि को समझ पाएंगे। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। मैंने विसर्ग को भी नहीं छोड़ा, अनुस्वार को भी नहीं छोड़ा। अगर गुणाः है तो मैं गुणा कह के नहीं छोड़ूंगा। व्यक्ति ही है तो मैं व्यक्ति बोल के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत में हर एक चीज काउंट होती है। अब धैर्य लय समर्थम, उसमें एक बिंदी है देखिए, तो लय समर्थ बोल के नहीं जा सकते आप। लय समर्थम तो माँ है, माँ जो है वो अनुस्वार बन गया, उसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। जब आप ह्रस्व दीर्घ करके पढ़ेंगे तो अपने आप वो छंद में आ जाएगा, भले आपको छंद पता ना भी हो, क्योंकि लिखा ही वैसे जाता है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। चलिए, तो स्वर वर्ण को हमने सीख लिया, घर में अभ्यास करना होगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक एक करके बोलने के लिए बोलूंगा, आप लोगों को उच्चारण करना पड़ेगा टोटली परफेक्ट। चलिए, व्यंजनानी। अब व्यंजन वर्ण जो हैं इनको अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया है। देखिए, का से लेके 1 2 3 4 5th रो तक ये 5 into 5 है। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? यू सी माय कर्सर? जी ब्रो जी। अच्छा, तो का, चा, टा, ता, पा, इसको हम व्याकरण में कुचु टू तुपु बोलेंगे। इनका नामकरण हो जाएगा कु। कु बोलेंगे तो का, खा, गा, घा, ङा समझ में आना चाहिए, ये 5 वर्ण। चू बोलेंगे तो चा, छा, जा, झा, ञा। टू, टा, ठा, डा, ढा, णा। तू, ता, था, दा, धा, ना। पू, पा, फा, बा, भा, मा। इन 5 गुना 5 ये 25 जो वर्ण है, पंचविंशति संस्कृत में बोलते हैं। ये जो पंचविंशति वर्णाः सन्ति एते स्पर्श व्यंजनानि, दिस आर नोन एज स्पर्श व्यंजनानि। ठीक है, अब इसको समझते जाइए। स्पर्श व्यंजनानि में हमने कु, चू, टू, तू, पू को लिया। इसके नीचे जो है या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, that itself is a group. इसको हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण। लिख लीजिए, अंतस्थ वर्ण, या, रा, ला, वा। अंतस्थ वर्ण इज इक्वल टू या, रा, ला, वा।
और घर में इस पीडीएफ को खोल के जरूर देखिएगा, अन्यथा मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप सभी भूल जाएंगे एकदम। य ला व ये अंतस्थ वर्ण। अब नीचे आइए, श श स ह, इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म, जैसा आप सुन रहे हैं वैसा ही लिखिए, ऊष्म वर्ण। आगे मिलेगा ये आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी में इन लोगों को विभाजित कर दिया। एक स्पर्श वर्ण जिसमें क से लेके म तक आया, एक अंतस्थ वर्ण जिसमें य र ल व ये 4, और एक ऊष्म वर्ण जिसमें श श स ह को लिया। इनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं? व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत्, 33, त्रयस्त्रिंशत्, व्यंजनानि त्रयस्त्रिंशत्। So we have already segregated these vyanjanas, very clear. Now, again, from ka to ma, they are in a group, but it's not that all of their nature is same. Each one stands on their own merits. का, ये जो कू है, कू बोलेंगे तो 5 वर्ण अनायास ग्रहण हो जाएगा। कौन कौन? का, ख, ग, घ, ङ। इस चीज को धीरे धीरे समझते जाइए। ये जो है का, ख, ग, घ, ङ, इसको लिख लीजिए ङ, NGA, ङ। जैसे गंगा, फॉर एग्जाम्पल, गंगा, मंगलम, ये जो ङ कहते हैं यही है NGA। तो का, ख, ग, घ, ङ, ये गटरल बोलते हैं इसको। गटरल यानी इट्स प्रोनाउंस फ्रॉम द थ्रोट, कंठ्य वर्ण, कंठ्य। ये है कंठ्य। सेकंड वन, च, छ, ज, झ, ञ, YAN, ञ, YAN। जैसे यहाँ पे है, देखिए व्यंजनानी, ये य के साथ ज लगा है, ठीक है। ञ, तो व्यंजन, व्यंजन। एक शब्द हमेशा उदाहरण याद रखिए। If you forget the pronunciation, you pronounce व्यंजन, then you understand ञ। यज्ञ, संज्ञा, ञ। तो च, छ, ज, झ, ञ, ये जो है, these are soft palate, तालव्य, just above the teeth. The tip of the tongue touches above the teeth. You say cha, chanchala, that part is talu. That's why it's called talavya. ठीक है। चा, छा, जा, झ, य हमने सीख लिया। टा, ठा, डा, ढा, ण, ये है मूर्धन्य, hard palate. The tongue rotates and touches the upper part of the mouth. This is hard palate. बोलिए टा, ठा, डा, ढा, ण। So the part it is touching, that is murdha. It's called murdha, hard palate. Sanskrit is the only language which explains this. No other language does it. German, French, Russian, whatever is there, they say you just pronounce like this. Okay, if I call it bridge, it's bridge. If I say bridge, it's bridge. You just listen to them and then accordingly you speak. In all other languages in the world. But Sanskrit is the only language which explains the inner science of the mouth even. Inner science of the organs, the tongue, how and where it touches.
and how much air is being passed, that's also being said amazingly. And the matra, how much time you should take, so much perfect. वेद में हम पढ़ेंगे ना, वेद में उद्दत्त अनुद्दत्त स्वरित, कहाँ ऊपर जाएगी आवाज, कहाँ नीचे आएगी, कहाँ पे फ्लैट होगा, वेदों में वर्णन है। कितना समय लगना चाहिए, तभी तो वेदों में अगर 21 वेद पाठी बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा एक ही आदमी बोल रहा है। आप रुद्री कभी सुनना, रुद्री पाठ या फिर स्वस्ति वाचन आदि प्रॉपर जो पढ़ते हैं वैदिक पद्धति से, 1000 brahmanas will chant all together and it will sound like a single person is reading. Totally, it's impossible. I will share one YouTube link in this group. You should listen just for listening. It's a mantra Rudri part. You should listen. 21 brahmanas are chanting, but it is impossible to understand that there are 21 people. Impossible. Why? Because there is such a big, beautiful science inside. And we are ignoring this science. तो टा ठा डा ढा ना, ये है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होती है ये, ठीक है। टा ठा डा ढा ना, ये in English only this exists. Ta, as a tulasi they call. But इसके बाद जो है ता था दा धा ना, this is दंत्य, dental. This does not exist in English. इसीलिए वो लोग तथा नहीं बोल पाते हैं, टाठा बोलते हैं। दंत्य है ही नहीं वर्ण। अभी नासा के मीटिंग में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज संस्कृत and we should utilize it in space science and in computer language, like spoken computer, spoken computer आप बोलिए find me America for example, तो ये सुन के जो समझने वाली बात ये सिर्फ संस्कृत में संभव है और एक छोटे से शब्द से बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं जो और किसी भाषा में संभव नहीं है। चलिए, तो ये तथा दधा न जो है मोटा मोटी ये जो है ये दंत्य वर्ण है, डेंटल। तथा दधा न, सी द टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ इनसाइड। तथा दधा न, तिथि, जैसा शंकराचार्य ने कहा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत् कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। इसमें सभी जो है मोस्टली दंत्य वर्ण है। अब आइए पा फा बा भा मा, ये लेबियल्स हैं, लिप्स, लेबियल्स। पा फा बा भा मा, अंग्रेजी में जो फ्लाई बोलते हैं, फ्लाई या फेदर, ये जो है ये अपर टीथ एंड लोअर लिप है, fly, but in Sanskrit it's not the same. Fa, phalam, both lips, phalam, ठीक है। पाफा बाभा मा ये जो है ये लेबियल्स हैं, लिप्स। तो देखिए ये 5 के जो स्पर्श वर्ण के हैं, तो सभी स्पर्श वर्ण, विदाउट टच नथिंग कैन बी प्रोनाउंस्ड, बट दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड स्पर्श वर्ण। ये जो है इनको हमने एक वर्ग में लिया, का से लेके मा तक, फिर हर एक को अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिया। एक एक चीज, एक एक लेयर समझते जाइए। अब क्या है, अब देखिए का चा टा ता पा वर्टिकली, का चा टा ता पा, और द थर्ड रो गा जा डा दा बा, ये दोनों रो को अल्प प्राण बोला जाता है। अल्प प्राण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अल्प प्राण। जो भी है, जहां पे लेस एम्फेसिस लगती है, लो प्रेशर से बोला जाता है। का चा टा ता पा गा जा डा दा बा,
But the second row, kha, cha, tha, tha, pha, and gha, jha, dha, dha, bha, second and fourth are called Mahapran, aspirates. Yes, aspirates, ऐसा कुछ कहते हैं. Kha, cha, tha, tha, pha, gha, jha, dha, dha, bha. But it only exists in Sanskrit, no other language. तो ये जो खछठा थप्पा है, अब देखिए, का ही खा बन जाता है, गा ही घा बन जाता है. But when you say ga, you release less air. But when you say gha, all of a sudden you say gha, you release a lot of air. When you say ka, it's soft. You put your hand here, you don't get your breath, ka. But you say kha, ऐसे नीचे हाथ रखिए, खा बोलिए. हवा आ रही है यहाँ तक आपके हाथ में, खा. हाँ, सभी बोलिए, खा, छा, ठा, था, फा. अब देखिए एक मजे की बात, जब आप फा बोलती हैं तो हवा नीचे की तरफ नहीं आती, सीधा जाता है, क्योंकि वो लेबियल्स है. बोलिए, खा, छा, ठा, था, फा. ठीक है ना. फा की हवा जो है, चूंकि लेबियल्स है, तो हवा सीधी जाती है, लेकिन दैट इज ऑल्सो एस्पायरेट, वो भी महाप्राण वर्ण है. तो ज्योतिष शास्त्र में नामकरण के समय अगर आपका नक्षत्र राशि भारी है, तो ये महाप्राण वर्णों से आपका नामकरण किया जाता है. ठीक है, वो अलग अलग विषय है. तो इसका प्रवेश इतना है, मैं समझाना चाहता हूँ, ये सामान्य क ख ग घ नहीं है, अल्फाबेट ABCD टाइप के नहीं है. इसकी जड़ें बहुत मजबूत और गहरी हैं. तो अल्प प्राण महाप्राण में हमने सेग्रीगेट कर लिया वर्टिकली. हॉराइजेंटली हमने कुचू टू तुपू में बांट दिया. दोनों प्रकार से हमने बांटा. देखिए, एक ही वर्ण है, एक ही ग्रुप है, लेकिन कितने प्रकार से बांटा जा रहा है. अब आ जाइए जो अंतिम है, ङ, य, ण, न, म. ङ, ये सब घर में अभ्यास कीजिएगा. इसको 100% लोगों की गलती होती है. ङ, य, ण, न, म. ङ, य, ण, न, म. सौम्या सखी देवीदासी बोलिए. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट. हाँ, बोलिए. हरे कृष्ण. या, या, रा, ना, मा. नहीं, पहले दोनों में गलती हो गई. एक है व, NGA, व, या फिर वा. YAN बोलिए. ठीक है, YAN, सॉरी WAN, सॉरी WAN, व बोलिए. वा, या, रा, ना, मा. ये जो ण है तीसरा वाला एंड चौथा वाला न है, ये दोनों एक नहीं है. बोलिए गणेश. गणेश. हाँ, गणेश. It's a hard palate. It should touch the top of the mouth. Okay, hard palate. ण, गणेश. एक उदाहरण याद रखिए, गणेश. और न, नवीन. ठीक है. इस प्रकार से शुरू में पकड़ के आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से कोई हिंदी बोलते हैं, तो कोई मराठी, तो कोई गुजराती, तो कोई मॉरिशन. अब उनकी जो जुबान जो है उसी प्रकार आपके एडजस्टेड हो चुके हैं. तो आप जब हिंदी में संस्कृत में श्लोक बोलेंगी तो ऐसा ना लगे अरे ये मराठी संस्कृत बोल रहे हैं या गुजराती संस्कृत बोल रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. संस्कृत अपने आप में एक भाषा है, और यहाँ तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ संस्कृत प्रोवाइड कर रही है कि मुझे कैसे उच्चारण आप करेंगे. ये और किसी भाषा में नहीं किया जाता है. यहाँ तक बता रहा है, मैं णा बोलती है कि मैं जो है हार्ड पैलेट हूँ, मैं अनुनासिक हूँ, है ना. अंग्रेजी का N लेटर does not say anything, but in Sanskrit each alphabet is loudly saying what am I. No.
है ना, गणेश याद रखिए, गणेश। अच्छा, नीचे प्रभु जी जो है मायातीत प्रभु, रिपीट। अनम्यूट। व ओं य न न म You have to rectify. See, nga, nga, गंगा, बोलिए गंगा गंगा। गंगा हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ गंगा। गंगा हाँ, नेवर गो फास्ट, अदरवाइज विल नॉट लर्न। गंगा। गंगा अंग बोलिए, गंगा। गंगा गिव मोर टाइम, गंगा। गंगा हाँ, अब क्लैरिटी आई। तो ये उंगा है, क्या है, उंगा, दूसरा उंगा। हाँ, न- का खा गा घा उंगा, NGA भी लिख सकते हैं और WAN भी लिख सकते हैं, उंगा। और नेक्स्ट वन इज न्या, न्या, YAN, न्या, बोलिए वाई ई YAN, न्या। यो हाँ, न्या। न हम्म, न म हणा, हणा, नॉट ना हणा। नहीं है, हणा। हाँ, अण ना, न म म। ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया, अच्छी तरह से अभ्यास किया, तो आपके उच्चारण में कहीं पे भी दोष नहीं रह जाएगी। ठीक है ना। और ये एक दिन में होगा नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्रादेशिक भाषा की जो दोष है वो बचपन से आपकी जुबान जो है ऐसे ही एडजस्टेड है। तो आपने अणा कभी नहीं बोला, ना बोला हमेशा, म कभी नहीं बोला। तो ये इसको आपको बार बार cautiously have to read. You take some Sanskrit text I can share and read it cautiously. If you want to improve, it's up to you. If you want to improve, do this. Otherwise, everybody speaks in Sanskrit like their own way. That's also a way. But then, if you are saying some shloka and I'm writing, I will misspell if your pronunciation is not clear. You will do the same mistake. So Sanskrit has to be like Sanskrit. चलिए, अब देखिए, ये जो हमने चतुर्थ विभाग मिला हमको, ङ, ञ, ण, न, म, ङ, ञ, ण, न, म, ये नेजल है, इसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ये 5 जो है अनुनासिक है, दिस अ नेजल। Generally, no teacher does this detailing, but I am specifically doing because all of you are devotees, and you have to chant the sloka. This is one of the desire of the devotees, first desire, that how will I be able to chant the slokas clearly. So that's why I'm giving so much time on it, okay? So if you want to excel, you can follow the guidelines I'm giving to you. But don't think that, I am going to teach in this way. I will teach in a simple way later on. But now I'm going into the detailing. But one time I'm doing. तो ङ, ञ, ण, न, म, ये नेजल हो गया। तो अभी देखिए, हमने वर्टिकल हॉराइजेंटली कुचु टू तुपु में बांटा, फिर हमने अल्प प्राण महाप्राण में बांटा, अब हमने अनुनासिक बताया, अनुनासिक द लास्ट वन, व, य, ण, न, म। अब इसमें मजे की बात यह है कि म जो है ये अनुनासिक तो है, इसका एक धर्म है अनुनासिक, दूसरा धर्म है ये कंठ्य वर्ण है, गटरल भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मायातीत प्रभु, आप मॉरिशस से हैं क्या? नहीं, तो गुजरात से। गुजरात से। तो आपको हम भारतीय भी बोलेंगे, गुजराती भी बोलेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार इसको हम अनुनासिक भी बोलेंगे एक दृष्टिकोण से, दूसरे दृष्टिकोण से हम इसको कंठ्य भी बोलेंगे। तो
व और य एक नहीं है, ये कंठ्य अनुनासिक है और ये तालव्य अनुनासिक है, और ये मूर्धन्य अनुनासिक है, ये दंत्य अनुनासिक है, और ये ओष्ठ अनुनासिक है। यद्यपि पांचों अनुनासिक हैं, लेकिन ये अलग अलग 5 प्रकृति के अनुनासिक हैं। अब इसके ऊपर संधि चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लिम्स देता हूं, जैसे मान लीजिए य का अगर संधि होगा कहीं पे, दिस इज नेजल साउंड, वी नीड मैनी नेजल साउंड्स व्हाइल यू आर स्पीकिंग। य विल ओनली गो विथ च छ ज झ। Apart from that, ya cannot be connected with da, or ya will never go with da. देखिए यहाँ पे व्यंजन है, या और ज इसी ग्रुप में है, अपने ही ग्रुप में या का संधि होगी और कहीं नहीं जाएगा वो जो है वो हमेशा का खा गा घ के साथ ही लगता है। गंगा क्या है, ग और म एक ही ग्रुप में है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंघयते म और घ है ना। लेकिन एक मजे की बात यह है कि मां अकेला ऐसा है जो किसी के साथ भी जा सकता है। जैसे कुंजम, मां हर जगह जा सकता, मां कैन बी नंदन, सॉरी नंदन नहीं, मंद, मां कहीं पे भी लग सकता है, और ये मकार जो है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाती है। हम आगे उदाहरण देखेंगे, तो ये संधि में, अनुस्वार संधि में इसका काम आएगा। चलिए, तो हमने पहला वाला 25 के 25 को जो है अच्छी तरह से सेग्रीगेट किया है। यार अलावा ये जो है इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। बेसिकली इसका नेचर जो है इन बिटवीन है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के अंदर रहते हैं, इसको कहते हैं अंतस्थ वर्ण, यार अलावा। और अंत में जो है श, श, स, ह, ये भी एक अलग चैप्टर है, इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब हम सेग्रीगेट करेंगे 1 by 1, इसको हम नामकरण करेंगे। चलिए देखता हूं आगे स्लाइड है कि नहीं इसके विषय में। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये देखिए अम और अह जो है, अम और अह, यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर वर्ण नवा, आर दे vowels or not? No, they are not. They are yes, but they are not. ये भाव है। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह बोलते हैं, अयोग वाह। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितना मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ सब कुछ आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, बट इट्स बेटर टू नो। ओके, अयोग वाह। अनुस्वार इस बिंदी को कहते हैं, अम, इम, उम दिया हुआ है, और विसर्ग इसको कहते हैं अह, अह, इह, एह, ऐह। अब अनुस्वार तो यू नो वेरी इजी, अनुस्वार एनीवे, जैसे गंगा वहां भी लिख सकते हैं और बिंदी भी डाल सकते हैं। नंदनम, नादा लिख सकते हैं और बिंदी भी डाल सकते हैं, तो वो तो अनुस्वार हो गया। विसर्ग का खेल ये है कि विसर्ग हमेशा किसी स्वर वर्ण के बाद ही लगेगा, है ना। राम, तो कौन से स्वर वर्ण के बाद लगा है, आज हम 7:10 तक पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा, बट रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। तो विसर्ग जो है, अगर आ है, फॉर एग्जांपल राम, अर्जुन, तो अर्जुन के अंत में अकार है ना, तो वो अह कहलाएगा। राम, कृष्ण, बोलिए राम, कृष्ण, अर्जुन। मैं जो भी बोल रहा हूं उसको रिपीट कीजिए मनी मन। लेकिन अगर आ गया तो लता, बालिका, तो बालिका आह बोलेंगे,
अभी अह बोल रहे थे, अभी आह बोलेंगे। बालिकाह। अगर ई है तो, कवि है तो, उसके बाद विसर्ग है तो कवि ही, कवि ही। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी बहुत गड़बड़ी होती है, इसीलिए मैं अभी पहले सिखा दे रहा हूं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो ये असुविधाएं आप फील करेंगी। तो अभी से आप इसको ध्यान दीजिए। कवि ही, रवि ही, हरि ही, बोलते ना हरि ही, ओम हरि ही। तो इकार अगर स्वरवर्ण है तो इही होगा। अगर उ है, जैसे साधु, 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 मधु, ठीक है। दुखम, दुखम। तो अंत में जो स्वरवर्ण है, अगर आ है तो आह, आ है तो आह, ई है तो इही, उ है तो उहु, रुकार है तो रुहु, ऐसे ही होगी। ठीक है, अनुस्वार विसर्ग हो गया। देखिए, स्वराह, ह्रस्व स्वराह, दीर्घ स्वराह, प्लुत स्वराह। जननी दीदी पढ़िए इसको। अनम्यूट and read. I don't hear you. पद्मगंधा दीदी पढ़िए अनम्यूट करके। I don't hear. Unmute. Ask to unmute. You cannot read? Okay. हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। स्वराः, ह्रस्वराः, दीर्घस्वराः, ह्रस्व नहीं, देखिए हा के बीच है एक रफला, ह्रस्व स्वराह। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुस्वराः। दीर्घ अगर इकार है तो दीर्घ बोलना भी पड़ेगा आपको, दीर्घ स्वराह ऐसे बोलना पड़ेगा। हिंदी के जैसा नहीं बोल सकते हम। अभी मैंने ह्रस्व दीर्घ सिखाया ना, दीर्घ स्वराह। ठीक है। रेवती रमन प्रभु बोलिए। स्वराः ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। वेरी गुड, ऐसे आप लोग उच्चारण कीजिए। हाँ, I'll give you time after this slide is finished, then I'll take questions. And this is an important chapter. तो ये हो गया ह्रस्व दीर्घ, आप लोगों ने सीख लिया है। ह्रस्व स्वराह फिर से देख लेते हैं। इनको ह्रस्व स्वराह बोलते हैं। दिस यू विल रीड एट होम। आ ई उ री लृ और रु लृ। ह्रस्व स्वर वर्णाः, ह्रस्व स्वर वर्णाः मूल स्वराः। इसको मूल स्वर कहते हैं। आ ई उ री लृ, ये जो ह्रस्व स्वर है यही मूल है, क्योंकि आ से ही आ बनती है, ई से ही ई बनती है, उ से उ, तो ये मूल स्वर हो गए। दीर्घ को मूल नहीं कहा जाता है, ह्रस्व को ही मूल कहा जाता है। नीचे देखिए जो मैंने पढ़ाया, एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः, दैट यू अंडरस्टूड। ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालः आवश्यकः। ये हमने पढ़ा दिया है। रत्नावली गोपी देवी दासी, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। ह्रस्व स्वराः, ह्रस्व स्वरा, ह्रस्व ह्रस्व, ह्रस्व स्वरा वर्णा
मूल स्वराः एकमात्रकालिकः स्वराः ह्रस्वस्वराः ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रकालः आवश्यकः आवश्यकः, वेरी गुड। आवश्यकः। साहिल यादव जी पढ़िए। एकमात्रा कालिकः ऊपर से पढ़िए, ऊपर से। ह्रस्वस्वराः अ, इ, उ, ऋ, लृ। ह्रस्वस्वराणां ह्रस्वस्वर वर्णाः, देखिए ठीक से। ह्रस्वस्वरवर्णाः मूलस्वराः एकमात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्वस्वरः ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रा कालः आवश्यकः। संस्कृत पढ़ते समय कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, सभी को मैं कह रहा हूं, तभी गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एकमात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः। कहाँ भागना, आराम से पढ़िए। ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एकमात्रा कालः आवश्यकः। रामप्रिया। एकमात्र बोलिए। ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्रा कालः आवश्यकः। Repeat it, huh? At home you practice very well. You open the PDF and go through it, huh? In the beginning, if you learn it properly, later on you won't have any problem. Sundar Vaman ji, I think there is someone waiting. Can you admit him? I'll do it. जी जी। Okay. तो दीर्घ स्वराः ह्रस्व स्वराः, अच्छा ह्रस्व हो गया, अब दीर्घ देखते हैं। देख लीजिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। अब दीर्घ स्वराः, साहिल जी फिर से पढ़िए दीर्घ स्वराः। अनम्यूट अनम्यूट। दीर्घस्वराः दीर्घस्वराणां संख्या 8। द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। वेरी गुड। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्रा कालः आवश्यकः। गुड। जयराम जी, unmute and read. बोलिए प्रभु जी, फास्ट। चलिए सीमा सिंघल जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं है। रसामृत मूर्ति दीदी बोलिए। हाँ, 2 participants raised hand. हाँ तो बोलिए। Unmute and speak. We have no time. दीर्घ स्वराः आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ,
औ और थोड़ा धीरे बोलिए माता जी, कालिकः लिटिल स्लोअर। आ ई बोलिए। आ ई उ री ए ऐ ओ औ हम्म। द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। हम्म। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्रा कालः आवश्यकः। वेरी गुड। आप थोड़ा स्लो पढ़िएगा, ठीक है? इन द बिगिनिंग रीड स्लो. Don't think always I have to finish reading somehow. No, I have to see, look into every letter and read. See, I'm reading. द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति, ऐसे। कृष्ण बंधु अन्य दीर्घस्वराः दीर्घस्वराणां संख्या 8। द्विमात्राकालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्राकालः आवश्यकः। वेरी गुड। पूरा पढ़िए। दीर्घ स्वराः कौन कौन है, पढ़िए। Which are दीर्घ स्वरास? माता जी बोलिए। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हमने, आप लोगों को समझ में आ गया है। प्लुत स्वर का हमारा काम ज्यादा नहीं होता है, इसलिए प्लुत स्वर को देखिए 3 लिखा रहता है। आ ई उ, ये सब प्लुत स्वर है। प्लुत स्वराः, प्लुत स्वराणाम संख्या 9। त्रिमात्रा कालिकः इज इक्वल टू प्लुत स्वरः। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। ये मैंने समझा दिया है आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है? कोई पढ़ना चाहेगा अनम्यूट करके पढ़िए जल्दी, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड चले जाएंगे। एनीबॉडी वांट्स टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। स्वराः माता जी को पढ़ने दीजिए, फिर आप पढ़िए। हाँ पद्मगंधा दीदी पढ़िए। अच्छा। प्लुत स्वराः आ ई उ री र ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वराणाम उच्चारण। नहीं माता जी, प्लुत नहीं है, प्लुत। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थ त्रिमात्रा काल आवश्यकः। देखिए मैं करेक्ट कर देता हूँ। प्लुत स्वराणाम, म में हलंत है, जहाँ पे हलंत होगा वहीं पे म नहीं बोलेंगे, अम। स्वराणाम उच्चारणार्थम, एक बिंदी है उसमें। त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। आवश्यकः, ठीक है? प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। Anybody else would like to read? और कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। प्लुत स्वराः, सुंदर वामन जी आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। प्लुत स्वराः प्लुत स्वराणां संख्या 9। त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वरः प्लुत स्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम
त्रिमात्रा कालः आवश्यकः। ठीक है, क्या सोनम जी आई हैं? आप पढ़िए अनम्यूट करके। सोनम माता जी, अनम्यूट एंड रीड। Ji, can I read? Hare Krishna. प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए, आई हियर यू। प्लुत स्वराः हम्म, आ ई उ रू रू ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वराणां संख्या 9। नव। त्रिमात्राकालिकः प्लुतस्वरः। प्लुतस्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्राकालः आवश्यकः। वेरी गुड। अच्छा, बाकी जो है स्लाइड, दिस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, आई एम जस्ट शोइंग यू। ह्रस्व स्वराः दीर्घः प्लुत स्वराः आ ई उ री री। देखिए कितने स्लाइड में इसको अलग अलग से बार बार पढ़ा रहे हैं, मतलब इट्स सच ए इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए इसमें फिर सेग्रीगेट करके पढ़ाया जा रहा है। दीर्घा, नीचे के जो 4 हैं ये हमेशा दीर्घ, ये याद रखिएगा। ए ऐ ओ औ, इसमें दोबारा नहीं गलती होनी चाहिए। ह्रस्व स्वराः दीर्घः प्लुत स्वराः। इसमें दीर्घ को दिखा रहे हैं विशेष रूप से कि ए ऐ ओ औ जो है दीर्घ है हमेशा। ह्रस्व दीर्घ, इनका ही देखिए ये एकात्मक है, इन दोनों की आत्मा एक है, इससे अतिरिक्त कोई भी एकात्मा नहीं है। आ ई उ री, ये 4 ही एकात्मक कहा जाएगा। प्लुत स्वराः। हाँ यहाँ देखिए एक चीज है, व्यंजनानि 33 वर्गीय व्यंजनानि अवर्गीय व्यंजनानि। तो क से लेके माँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसको वर्गीय कहेंगे। वर्गीय मतलब इन ए ग्रुप। देखिए यहाँ पे ये ग्रुप में आते हैं, इसको वर्गीय कहेंगे। और इस वर्गीय, हाँ, यारा लावा और शाशा साहा ये अवर्गीय है। जैसे हम कहते हैं ना निर्दलीय प्रार्थी, वैसे ही ये अवर्गीय है। दिस इज नॉट इनसाइड द ग्रुप। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को संक्षिप्त रूप से समझा दिया है, तो आप लोगों को पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। देखिए जो मैंने बताया, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठतालव्य, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर समझाएंगे, अन्यथा बहुत ज्यादा हो जाएगी एक दिन में। ठीक है, घर में प्लीज ये जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है इसको अच्छी तरह से देखिए। इस पीडीएफ को मैं डिटेलिंग से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो है ना हमारा वेडनेसडे, सो फ्राइडे। हाँ तो फ्राइडे को मैं वृंदावन वापस जा रहा हूँ, तो इफ आई रीच ऑन टाइम देन आई विल डेफिनेटली डू द क्लास। Hopefully you can do it, we can make it, because 6 to 7 हो सकता है मैं थोड़ा लेट आऊं, 6:30 या 7 बजे शुरू करूं, डिपेंड्स ऑन माय शेड्यूल। तो अभी आप लोग अनम्यूट करके बोलिए, जिनको जो भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है इससे संबंधित आप लोग पूछिए एक एक करके। ठीक है, इट्स योर टाइम। किसी के मन में कोई शंका दुविधा कुछ हो तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी ये मुझे अनुस्वर और विसर्ग यही इसका बता सकते हैं दोबारा से? अनुस्वार विसर्ग तो ये देखिए इसमें ये जो है अंत में माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, ये अंतिम में जो 2 डॉट्स हैं इसको अनुस्वार कहते हैं, हाँ विसर्ग कहते हैं, ठीक है, इसको विसर्ग कहते हैं। और देखिए सेकंड लाइन में धैर्यम, ये जो बीच में एक बिंदी है, लय समर्थम, रेफ के बीच में एक बिंदी जो है इसको हम अनुस्वार कहेंगे। अम को अनुस्वार बोला जाता है, अम को अनुस्वार बोला जाता है, और इसको विसर्ग। सुस्वरः व्यक्ति ही, ये विसर्ग है। 2 डॉट्स और विसर्ग, सिंगल डॉट ऑन टॉप इज अनुस्वार, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। रेवती रमन दास, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। जैसे हमने मराठी हिंदी में सीखा है, ये अम और सर्ग, विसर्ग और अनुस्वार ये स्वरों में गिनती होता था, लेकिन यहाँ संस्कृत में उसको अलग से दिया है। ये स्वरों में क्यों नहीं गिनती होती? अम और अह पर ये स्वर है भी, मैंने कहा ना ये स्वर है भी नहीं भी है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी लग सकता है। ये स्वर वर्णों के साथ भी लगते हैं और व्यंजन वर्णों के साथ भी लगते हैं। तो इसको जो है, हाँ इसको जो है देखिए, समर्थम में था के साथ बिंदी लगी है, अनुस्वार, था व्यंजन वर्ण है। लेकिन व्यंजन वर्ण में भी स्वाभाविक रूप से स्वरवर्ण होती ही है। स्वरवर्ण के अलावा व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोयम। हाँ, माँ कहेंगे तो आ बोलना ही पड़ेगा। जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है पर वो दिखती नहीं है, उसी प्रकार आकार के बिना कोई भी व्यंजन वर्ण उच्चारित हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं लंगड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, एकात्मा में अ, ई, उ और ए आता है। ए क्यों आएगा? ए नहीं आता है। आ ये एकात्मा है, ई ये एकात्मा है, उ ये एकात्मा है, री एकात्मा है, बाकी कोई एकात्मा नहीं है। 5 ही एकात्मा है, 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ठीक है। री का, अब देखिए जीव गोस्वामी री का डबल री को भी एक्सेप्ट करते हैं, री को बोलते हैं, लृद्वयम ऐसा लिखा है उन्होंने, लेकिन पाणिनि ने री को एक ही माना है। इसका जो डबल फॉर्म होता है वो री एक्सेप्ट करते हैं, वो री का भी डबल फॉर्म री मानते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऋकार भी एकात्मा है, सवर्ण है, मतलब आ से लेके री तक डबल 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 है। चलिए नेक्स्ट। बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस आई कैन हियर यू, प्लीज स्पीक। प्रभु जी, आपने बताया था एक मात्रा भवेत है, द्विमात्रा भवेत दीर्घ, त्रिमात्रा क्या बोला था? गेयो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। गेयो। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो। गेयो मतलब जानिए, ऐसा गेयः। ऐसा आप लोग यू नो लाइक दिस, यू नो, यू शुड नो लाइक दिस। प्लुतो गेयो। Anybody else? Anybody else? चलिए बहुत समय हो गया। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो जो ली है उसको ली पढ़ेंगे ना? हाँ री, देखिए उत्तर भारत में री बोलते हैं, दक्षिण भारत में रू बोलते हैं। हम कृपा बोलते हैं, दक्षिण भारत में कृपा बोलते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि देखिए एक शब्द है प्रिया, ठीक है, प्रिय। तो अब हम प्रिय जो लिखते हैं और पृथ्वी दोनों एक जैसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं ना किसी भी भाषा में। हाँ तो बोलिए। तो पृथ्वी में रिकार लगाते हैं और प्रिय में रफला लगाते हैं। अब दोनों को ही री बोलेंगे तो प्रिया लिखते समय हमको कैसे पता चलेगा ये रफला है ये रिकार है?
इसीलिए रिकार को दक्षिण में रू बोला जाता, पृथ्वी। तो उससे ये भ्रम नहीं होता है कि इसमें रफला लगा है कि रुकार लगा। इज इट क्लियर? क्लियर प्रभु जी। हाँ, प्रभु तो जी जो रू बोलना ही ठीक है, रू रू ऐसे ही बोलना ठीक है। रू पृथ्वी, कृपा, कृष्ण, रू इट्स करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि कृष्ण अगर हम जैसे अच्छा। क्रिया लिखते हैं उसको भी क्री बोलते हैं, कृष्ण को भी क्री बोलते हैं। अब काम में रफला है या जी। रुकार है, कैसे पता चलेगा? आप समझ गए मेरी बात? हाँ हाँ। तो इसीलिए एक को री और बोला प्रभु जाता है, जी रू क्रिया। री हम्म, हाँ, पहला वाला रू फिर री, और ये जो ल के नीचे लगा हुआ है ना र की मात्रा, हम्म। उसको उसको री बोलेंगे। लरू बोलेंगे उसको, वो भी ला के साथ रू लगा हुआ है, लरू। उसका Thank you. प्रयोग नहीं होता है, ना के बराबर है, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल लरू बोलते हैं उसको। तो एक दो ही शब्द हैं, उसको वेद में इसका प्रयोग होता है। लरू आकृति, लाकृति एक संधि आती है, भगवान को लाकृति बोला जाता है।